Hello everyone, welcome back. In this video, we will specifically talk about how to distinguish between good investment and bad investment. Strong investments हम सभी करना चाहते हैं, no matter market में कितनी भी volatility हो, no matter कंपनी के fundamentals या financials कितने भी बड़े या छोटे हो. तो ऐसे क्या tools हैं, ऐसे क्या techniques हैं जिनको समझकर हम किसी भी स्टॉक को एक्सेस कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है या नहीं. So let's get started to understand what are the tools and techniques for the same. But promise me you're going to make a lot of notes out of this video. Second, you are going to complete this video in one go. So let's get started. All right. So good versus bad investment. What are the factors which are very prominent? Now you might be wondering that हम तो स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं. जी हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है. आपको ये फैक्टर्स, ये पैरामीटर्स पर हर इन्वेस्टमेंट, हर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट करना ही है. टेक्निकल एनालिसिस इतनी जगह है, बट एक बड़ी पिक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल. Now let's try to understand. अब ये फैक्टर्स को समझकर या जानकर आपको क्या desired outcome achieve होने वाला है. Why we are learning all this? That is, what are the factors to be considered while talking about the strong investments? So ultimately, when you identify these factors, you would be in a situation to assess a company's financial health. You will identify fundamentally good stocks and so on and so forth. So let's try to understand. The objective of understanding these factors is to analyze financial health of the businesses in which you want to invest in so that you can take the right decisions. Second, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको ये समझ में आएगा. साथ में आप जानेंगे कि वैल्यूएशन को लेकर क्या मैट्रिक्स, क्या पैरामीटर्स फॉलो करने हैं. और इससे आपको समझ में आएगा कि रोजमर्रा के बिजनेस के अंदर भी, डे टू डे बिजनेसेस के अंदर भी आप इन वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स को अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं. साथ में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, लॉन्गिविटी को बिलोंग करते हैं, प्रॉफिटेबल हैं, इन्वेस्टमेंट्स अप्रिशिएट होंगे, वगैरह वगैरह. तो ये सब डिसीजंस आप कब अच्छे से ले पाएंगे, जब आपको ये फैक्टर्स पता होंगे. Friends, I'm getting into the subject, getting into the course very gradually over a period of time so that you grasp everything like a sponge out of this, right? So I don't want any one of you to miss on any of the factor. Take notes, complete this video in one go. I know you can do it. Okay, so let's get started to understand the factors involved. The very first thing which we look forward is strong financials. That is, look for profitable businesses, look for what is the debt structure, and look for steady revenue growth. Now you might be wondering कि पूर्वा, easy to say strong financials, पर ये देखना कहाँ पे है. I'll guide you how to see, how to look all this. Okay. So मैंने यहाँ पर screener.in, if you can just check around here, let me highlight. Okay, screener.in open करके रखा है. I can write the name of any company of your interest. Say for example, Reliance. Okay, Reliance Industries का financials आपको screener पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. हर वो कंपनी का financials आप जो देखना चाहेंगे वो आपको यहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. तो आप सबसे पहले यहाँ पर सर्च करें कंपनी नेम को, right? And you open that company name, you will get the website ID of the company here. You will also get where the company is listed, that is BSC or NSC. You will come to know about the financials, that is numbers of the company. Let's get started. What I discussed about? I discussed about the strong financials. Look for profitable, low debt and steady revenue growth वाली कंपनियां. अब ये कहाँ देखनी है? प्रॉफिटेबिलिटी हमें कहाँ मिलेगी देखने के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगी. कैसे रीड करना है? डोंट वरी ऑन दैट, आई विल गाइड यू ऑन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रीडिंग दिस, राइट? सो प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगी. डेट आपको कहाँ पर मिलेगा? बैलेंस शीट में आपको बोरोइंग्स में डेट मिलेगा कि कितनी बोरोइंग्स है, कितना लोन ले रखा है. लाइबिलिटी साइड में आपको डेट मिलेगा.
और साथ में जो नेक्स्ट क्रूशियल एलिमेंट है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, वो कहाँ से पता चलेगी? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको देखकर पता चलेगा कि कंपनी की मंथ ऑन मंथ बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स नंबर क्या है। एज यू कैन सी हियर द सेल्स नंबर, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर एंड द नेट प्रॉफिट, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। सो isn't it easy? Okay, so let's get started with understanding the same. All right. Well, now, strong financials. Why it matters? Because if the company is not solvent, ऐसा नहीं है कंपनी के पास में, कोविड जैसी सिचुएशन को भला कंपनी सरवाइव कर पाएगी या फेस कर पाएगी? आज मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, ट्रम्प सर के कितने सारे स्टेटमेंट्स रोज बिजनेस में डाउन टर्न्स लेके आते हैं या अनसर्टेनिटीज लेके आते हैं। तो इन दैट सिचुएशंस इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, देन that company will have strong prospects. Okay, so it's crucial for us to understand, right? Key facts: companies with consistent profit, increasing revenue, and low debts are more stable. ऐसी छोटी मोटी या बड़ी बातें, चाइना रशिया यूक्रेन का किसी का वार भी हो गया, तो ये वॉर सिचुएशंस भी आप के फाइनेंशियल्स को ज्यादा हिला नहीं पाएंगे, राइट? सो companies with consistent profit, revenue increasing and low debts are very important. So let's try to understand. हम देख रहे हैं रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखें जरा, क्या कंपनी के सेल्स नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहे हैं? 596, 466, 694, 876, 899, ऑल दिस नंबर्स आर इन क्रोर्स। क्या कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है? 108, 142, 162 and so on so far. So revenues are positive, profit is profit positive, and debt is in control. Yes, debt is in control, right? So ये आपको कहाँ से मिलेगा? कंपनी की बैलेंस शीट में आप बोरोइंग्स देखेंगे, कंपनी की बोरोइंग्स एक कंट्रोल वे में है एज कंपेयर टू इक्विटी. So that's how you get an idea about how the company stable is, how stable the company is, and what are the future prospects of the company. Now, let's try to understand the next part. Again, an example I have shared is TCS. अब कैसे देखना है TCS को? Let's try to identify quickly. अपने screener.in में जाना है, अपने TCS identify करना है, और you get into the financials of TCS. अब प्रॉफिट को देखने के लिए हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जस्ट चेक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट क्या बढ़ा है? यस। क्या कंपनी के सेल्स रेवेन्यू बढ़े हैं? यस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस? 53,000, 59,000, 64,000 एंड सो ऑन। क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है? हाँ। दिस शोज दैट द कंपनी हैज स्टेबल revenues, growing profits, and you can check the debt again in the balance sheet, almost nominal as compared to the equity part. So that's very crucial. Now let's get into the next part of this. The next part is competitive advantage, that is unique products, brand strategy and market dominance. जो मैटर करती है, अगर आपके पास में यूनिक प्रोडक्ट है तो आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की है। अब दिस इज द यूएसपी की क्या खास फीचर है जिसका कंपटीशन या जिसके अगेंस्ट कंपटीशन कोई भी नहीं दे सकता? Okay, so that is the one which will provide you a competitive advantage. Let's try to recall any brand around you. Let me give a quick example. Apple denominates, exactly, Apple dominates the premium other brands, right? And it has a strong customer loyalty. So having said that, competitive advantage आपको मिलता है, market dominance आप कर पाते हैं, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। नाउ कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री, अब ये क्या बताती है? जो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करती है, इसका मतलब है वो कमिटेड है टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कभी आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो गई और आपने उस पैसे को रोक लिया, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स पेइंग डिविडेंड भी चेक करना काफी क्रूशियल हो जाता है। नाउ अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स दे रही है, इट मींस दैट द कंपनी हैज स्टेडी कैश
profits, cash flows and profits at time, right? So there are many companies like HDFC, आप जब भी देखेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविडेंड पे करती है। अगेन, किसी भी कंपनी के रिगार्ड में आप उनका डिविडेंड यील्ड यहाँ देख सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, डिविडेंड पर शेयर हर जगह रिफ्लेक्टेड होता है एंड यू कैन आइडेंटिफाई इट फॉर एनी स्टॉक। अगेन फॉर HDFC, let's do it right away. See, dividend yield 1.0907%, right? How much dividend is paid is also mentioned year on year basis by such companies, right? So it is very important, very crucial to look into the consistency with regard to the dividend payment. Now the next is the debt equity ratio. Debt equity ratio क्या होता है पहले ये समझें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस में अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट किया एज एन ऑनर, एज अ शेयर होल्डर, जिसे मैं इक्विटी कहती हूँ। और डेट मतलब मैंने बाहर से पैसा लेके इन्वेस्ट करा मेरे बिजनेस के अंदर। एक तरह से थोड़ा बहुत डेट इक्विटी कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है कि आप लीवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब आप लीवरेज का बेनिफिट लेते हुए अपने इक्विटी होल्डर्स का आरओई बढ़ा सकते हैं। बट डेट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा है, एक्सेसिव है, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क हायर है। भैया आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही होगा, नो मैटर चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज लो डेट इक्विटी रेशियो? इज इट प्रेफर्ड? यस, इट इज प्रेफर्ड। कैन वी चेक द लो डेट इक्विटी रेशियो और हाई डेट इक्विटी रेशियो फॉर एनी कंपनी? यस, फॉर एनी कंपनी यू कैन चेक। से फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास में HDFC बैंक ओपन है, यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो 6.44 टाइम्स है। इट मींस वेरी हाई एज कंपेयर टू इक्विटी। तो इक्विटी के कंपैरिजन में डेट इक्विटी रेशियो काफी हाई है। तो ऐसे केसेस में कंपनी को एक अच्छा खासा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पे करना पड़ता है। वहीं अगर हम TCS को देखें तो क्या हम चेक कर सकते हैं कि TCS का डेट इक्विटी रेशियो कितना है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। Okay, here we go. Debt equity ratio just 0.09. What it shows? अगर डेसिमल को हटा दे तो मतलब अगर 100 रुपए की इक्विटी है तो उस पे केवल 9 रुपए का डेट खड़ा हुआ है, मतलब किसी बाहर वाले का ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ है। इट मीन्स दैट, इज दिस अ गुड साइन? Yes, this is a good sign, which shows that company is self-sufficient, does not face any such great financial risk. Isn't it interesting? Okay, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके पास में डेट हाई है, जैसे HDFC बैंक के पास में है, तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। सो अ डेट इक्विटी रेशियो बिलो 1 इज कंसिडर्ड एज सेफ। TCS के केस में क्या सेफ है? यस, सेफ है। बट HDFC के केस में फाइनेंशियल रिस्क हाई है? हाँ, हाई है। सो अगेन वन मोर एग्जाम्पल हैज बीन शेयर्ड फॉर यू। Just go to screener.in and just check what is the direct equity ratio of Infosys, right? The next is management, right? Management is one of the crucial component which actually decide what would be the pathway for the company for next 5 years, 10 years down the line, right? Ratan Tata, we all know that how sharp, how experienced the person was, and under his leadership, Tata Group ने काफी significant milestones achieve करे. सभी companies ने, in fact, in the Tata Group. Similarly, with regard to Reliance Industries, you can identify what is the role of the captain here, right? So, जब companies में मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, देन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, एंड दैट इज द की, राइट? सो वी ऑल नो दैट विथ रिगार्ड टू रिलायंस, मुकेश अंबानीज contribution is most valuable, which shows the strong management. Now let's talk about the industry growth. Invest in the growing sector. ग्रोइंग सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे सोलार, wind energy, hydro energy, right? These are the growing sectors. EV, electric vehicles, right? Infrastructure, green, go green इनिशिएटिव्स लेने वाली कंपनीज। तो ऐसी स्टॉक्स क्या है? ग्रोथ स्टॉक है, और इनमें स्टॉक इन्वेस्ट करके आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। हर कोई आज इंडस्ट्री में
ESG फ्रेमवर्क को प्रमोट कर रहा है। सो ऐसी ग्रोइंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करें, सो इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू योर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक मोट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन इकोनॉमिक मोट। मतलब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास में, जो कि आपके peers के पास में नहीं है। एंड सिंस यू हैव द मोट, you can encash on the long-term profitability and resist the competition. For example, Geo Financial Services. For example, let's talk about Apple. Have a brand moat, right? Walmart, again, cost operations. Again, here in India, we have DMart, right? Patents mode, so which will help you to have long term profitability and resist the competition, right? So create your own moat, right? That's very crucial for such businesses, right? So let's try to understand, when you have a specific moat, for example, it is very difficult to be so innovative and disruptive like Apple, right? When you have such moat, you face less competition and you can get great returns from your investment, right? So for example, in our country, say we all know Nestle has a strong moat because of the brands like Maggi, Nescafe, Kit Kat, everyone know that, right? The next important aspect is valuation metrics. Now, you might be wondering that we are going a little technical, but let's try to understand this and look it as a story, right? आप अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या देखोगे, है ना? कौन कौन से पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं, ये उस तरह से आप इस चीज को इवेल्युएट करें। अब मैंने आपको कहा कि आप चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या आप उसमें इकोनॉमिक मोट आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट मिनिमल है? Yes. So, when you get acquainted with such language, आपको अपने आप से ही इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू understand and to build wealth from the stock market. Now, as I said, valuation metrics ये क्या रोल प्ले करते हैं? वैल्यूएशन मैट्रिक्स काफी क्रूशियल होते हैं। जैसे किसी क्लास में हम 50 बच्चों को किस बेसिस पर जज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन वैल्यूएशन मैट्रिक्स की डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हाइजीन मेंटेन करते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर, राइट? सिमिलरली वैल्यूएशन मैट्रिक्स की हम जब बात करें तो हम देखेंगे उनका पी क्या है, पीबी क्या है, दैट इज पीई इज प्राइस अर्निंग रेशियो, पीबी इज द प्राइस एंड बुक वैल्यू रेशियो, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड रेशियोज कहाँ है? ना यू माइट बी वंडरिंग, ये रेशियोज क्या है, फ्रीली अवेलेबल हैं? यस, दे आर फ्रीली अवेलेबल। क्या ये क्रूशियल है? यस। अगर ये रेशियो इंडस्ट्री पीवी से या इंडस्ट्री पीवी से कम है तो इट सजेस्ट दैट यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन की अपॉर्चुनिटी बनती है और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं कैसे हमें इनको देखना है उसकी ओर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ मिलेंगे हमें सब ये रेशियोज? यही मिलेंगे। स्टॉक का पीई है 27, बुक वैल्यू और करंट प्राइस आज की तारीख में क्या रिलेशनशिप रखती है वो आपको यहाँ विजिबल है। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो आपको विजिबल है। अब कंपैरिजन कैसे करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पियर्स पे मैंने क्लिक किया एंड व्हेन वी गो टू द पियर्स वी सी दैट इंडस्ट्री का मीडियन पीई 28 है, बट आज की तारीख में इन्फोसिस का पी 24 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। फेयर वैल्यूएशन है, यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, राइट? सिमिलरली इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसे रिटर्न ऑन उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। उस पर कंपनी ने कितना रिटर्न अर्न किया, वो 39 है। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 50 रुपए आपके और 50 रुपए लोन लेके, तो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है? उस पे कंपनी 39%, मतलब 100 रुपए पे 39 रुपीज का मुनाफा कमा रही है। क्या ये अच्छी बात है? हाँ। जितना ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी अच्छी बात, बिल्कुल हाँ, राइट? सिमिलरली रिटर्न ऑन एक्विटी का है, जब आपने केवल 50 रुपए इन्वेस्ट करे हैं अपनी जेब से, तो उसके ऊपर कितना रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ है वो आरओई बताता है। जितना बड़ा ये नंबर उतना बेनिफिशियल, यस। बट हाँ, जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हायर साइड पे होते हैं, डेफिनेटली उसका
स्टॉक के लिए पीई भी हायर साइड पे होता है। प्राइस और अर्निंग का रिलेशनशिप इज पीई रेशियो। जितना जितना ज्यादा कंपनी अर्न कर सकती है, दैट इज अर्निंग राइट, उतनी ज्यादा प्राइस हम देना चाहेंगे उस कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए, राइट। तो उस केस में पीई हायर साइड पे होता है। पीई shows the relationship between price and earnings, right? So let's try to understand. अगर इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 31 है, इट shows that कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे 31 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करके देती है। वहीं इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड केवल 23 रुपए का है। दिस शोज दैट द कंपनी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस की। तो जस्ट क्लिक ऑन द इन्फोसिस बटन एंड यू विल गेट द डिटेल की कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, डेट इक्विटी रेशियो कितना है। जितना स्ट्रॉन्ग या ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, उतनी स्ट्रॉन्ग वो कंपनी। जितना कम डेट इक्विटी रेशियो का रिलेशनशिप, ये बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क इतनी कम है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। सो दिस इज द वैल्यूएशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी, मतलब पैसा। जब चाहिए तब अगर आपकी पॉकेट में, आपके वॉलेट में पैसा हो, तो दैट्स द लिक्विडिटी, यूजिंग कैश एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। नाउ टेल मी, जब डिमोनेटाइजेशन आया था, राइट, कैश करेंसी वाज द किंग, राइट, यूपीआई इतना प्रचलित नहीं था, राइट। सो उस केस में लिक्विडिटी was the main reason which will help you to buy, sell anything at that point of time, or you want to invest, liquidity was important। ठीक है, आपके हाथ में वैलिड करेंसी होना इंपॉर्टेंट थी, इसलिए लिक्विडिटी इज क्रूशियल। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी मतलब आप, नो मैटर कितने भी फ्लक्चुएशंस हो मार्केट में, आप अपने प्रोडक्शंस, अपने सर्विसेज इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी देखी जाती है। अब स्टॉक्स विथ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इंश्योर इजी बाइंग एंड सेलिंग। फर्ज कीजिए रिलायंस का स्टॉक, राइट, जहां पर अच्छी खासी ट्रेड्स होती हैं थ्रू आउट द डेज। इट शोज वेरी क्लियरली कि बायर के लिए सेलर है और सेलर के लिए बायर इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे केसेस में जब डिमांड और सप्लाई को बैलेंस मिल जाता है, तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ऐसे स्टॉक हाईली लिक्विड स्टॉक्स माने जाते हैं। सो रिलायंस हैज हाई लिक्विडिटी इंश्योरिंग इजी एंट्री टू द मार्केट टू बाय रिलायंस का स्टॉक एंड इजी एग्जिट। The last step which will help you to build up strong investment is avoid speculative and penny stocks। अब ये स्पेक्युलेटिव्स और पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? ऐसे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा होता है, उसे हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में स्पेक्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग रोकनी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स का फंडामेंटल्स लो होता है, मतलब ऐसे स्टॉक्स को कोई ज्यादा तौर पे खरीदता या बेचता नहीं है, या ऐसे स्टॉक्स के वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगर देखे जाएं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत हिले हुए से रहते हैं और ऐसा लगता है कि क्या ये कंपनियां वाकई में चल रही हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दैट इज व्हाट पेनी स्टॉक इज ऑल अबाउट। सो हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखिए, जिसमें आप रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, आप कैश देखेंगे, आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे, वगैरह वगैरह। क्विक एग्जांपल इज लाइक यस बैंक, जिसके अंदर मासिव स्टॉक क्रैश आया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और बैड लोन्स। सो दैट्स व्हाई अवॉइड सच स्टॉक्स। ये क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। पैसा बनाने से ज्यादा उस पैसे की सेफ्टी क्रूशियल है व्हेन यू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट। सो दिस इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट how you need to understand, how you need to look into investments, how to distinguish between bad investment and good investments, and choose the strong investment for your portfolio creation part. So do type in the comment box what are your top 6 key takeaways from this video. Don't get into the next part unless and until you complete this video. Write down your key findings and then only you're permitted to go into the next part, because I don't want you to miss on your journey of learning and growing. See you in the next video.